क्या सोशियो इमोशनल मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है? आईआईटी मुंबई और आईआईटी खड़गपुर में प्लेसमेंट नहीं, तो रीजन क्या है प्लेसमेंट हो? दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ एनईपी 2020। एक तमिलनाडु का बच्चा है तो वो तमिल में सीखे। तो बच्चा क्लास 1 में जाएगा, वहां हम इसको मैजिक बॉक्स के रूप में, दैट इज कॉल्ड जादुई पिटारा। सीबीएसई आल्सो इंट्रोड्यूस ए वेरी गुड थिंग, सफल, SAFAL, जादुई पिटारा आपने बताया, मैजिक बॉक्स। हाँ जी, वो क्या है सर? हर सब्जेक्ट पे क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। एक लाइन में बता देंगे कि निपुण भारत क्या होता है? If you want to continue and survive in this world, you have to, अगर ये 3 चीज बच्चा सीख ले। कोरिया के एजुकेशन गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम से हम क्या सीख सकते हैं? Hello everyone, welcome to the first episode of Schoolcast. This is a podcast with the school leaders of India and the world. And today is our first episode. And today we have with us Dr. D.K. Sinha, Principal of Jagran Public School. Welcome, sir. Thank you for being our first guest on the Schoolcast. Okay, thank you, नमस्कार। सर, वैसे तो आपको ज्यादातर लोग जानते ही हैं, पर सर जो लोग नहीं जानते, तो क्या आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर अपना? जी, आई एम डॉक्टर D.K. सिन्हा, right now working in Jagran Public School as a principal and director of World Council of Total Quality and Excellence in Education, is associated with Quality Circle program. ग्रेट सर, थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं? आप एजुकेशन फील्ड में कितने टाइम से हैं? आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? I did my post graduation from Bhagalpur University in geology, and I was the first batch of NET, JRF, Junior Research Fellowship. I work in a international project, Ethno-Ecological Survey of Santhal Pargana. That's the part of that time old Bihar. And I did my doctorate from the same university in the year 1992. And after that, I joined higher education for some times. But I was interested in school education only. That's why I shifted to Kendriya Vidyalaya and then finally in DPS and DAV. And right now I am in Jagran Public School. Great. We are honored to have you, sir. Ji. Sir, first of all, let's start with it. And since you spend most of your time in schools, sir, आजकल NEP, NCF, everyone is talking about it, but most of the people are not aware about the nitty-gritties. So, sir, starting के लिए क्या हम 2 मिनट में सिर्फ NEP, NCF के बारे में explain कर सकते हैं? ऐसे explain के हम एक 10 साल के बच्चे को explain कर रहे हैं? Well, actually, NEP 2020 focuses on 5 skill, the 5 important skill. Now we have 5 plus 3 plus 3 plus 4. So NEP 2020 focuses on fostering 5 important skills in the children. Sir, 5 plus 3 plus 3 plus 4 क्या है? 5 plus means foundational stage. That nursery to now they included nursery also in the school education. These 5 years is a foundational stage. 22nd October 2022 में our education minister Dharmendra Pradhan launched NCF FS, National Curriculum Framework Foundational Stage, 22nd October 2022. And in that, they are giving, they develop some magic box also, Jadui Pitara, by NCRT. Dr. Rajput was the main brain behind this. Sir, foundational stage का मतलब है नर्सरी से क्लास 2 प्रेजेंट. Now instead of using kindergarten or Montessori system, LKG, UKG, as per NEP, now we have to use Bal Batika. Correct. That is called FS1, FS2, FS3, FS4 and FS5. मतलब सर अब हम kindergarten नहीं बोलेंगे, अब हम फाउंडेशनल स्टेज और बाल बाटिका बोलेंगे. Okay. और बाल बाटिका में एंट्री जो है 3 years है, और by the time child enter class 2, 8 years. So 3 to 8 years we have foundational stage. Okay. और इसमें हम 5 स्किल पैदा करेंगे. पहला तो है फिजिकल डेवलपमेंट. Okay. दूसरा है सोशियो इमोशनल, उसमें डेवलपमेंट होना है. कैसे सर इसे एक्सप्लेन कर? जैसे फिजिकल मतलब उसका बच्चे का फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर हो. बिल्कुल. आज आप जानते हैं एवरीवेयर फास्ट फूड्स आर देयर. करेक्ट. The canned foods we are giving to the child. The day child born, we started, the processed food. Yeah. So under that circumstances, we have to aware that we have to give them all natural food.
कुक्ड फूड, हाउस कुक्ड फूड अगर हम उनको घर में बनाया भोजन देते हैं तो उनका ओवरऑल ग्रोथ होगा। इंस्टीड ऑफ यूजिंग ऑल दीज केमिकल, इसमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं बहुत हाई अमाउंट में, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, बेंजोइक एसिड, सो ये केमिकल्स उनके बॉडी को इंटरफेयर कर रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट में हमें उनको नेचुरल देना है। दूसरा सोशियो इमोशनल, वी ऑल नो वी आर ए सोशल एनिमल, हम उसका क्या सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हम ध्यान रखें। दूसरा एग्जामिनेशन सिस्टम, राइटिंग ABCD 1 2 3, we are not giving, that's the playway methods. Experiential learning by doing, let them exposed to their own natural environment कि वो खुद से सीखे। एक बाउंड्री रखनी पड़ेगी हमें कि उसको एक नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग पहले प्रेशर में टेस्ट होगा ये होगा, नो। तीसरा है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग। सर क्या सोशियो इमोशनल मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है? बिल्कुल है। आपको जब सामाजिक, हम पहले बता चुके हैं कि अगर हम एक सामाजिक प्राणी हैं, बिल्कुल, अगर हम समाज में ग्रोथ होते हैं, अभी आपको पता है हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में जी रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरी बात, उनके बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग नाउ, उनके पास समय नहीं है, और ओनली वन चाइल्ड, अर्लियर वी हैड 2 चाइल्ड कंसेप्ट, नाउ 1 चाइल्ड। अब एक बच्चा अकेले अपार्टमेंट में विदाउट एनी ग्रैंड पेरेंट्स, यू जस्ट सी, and that's why you see उसमें हाइपर एक्टिवनेस हो रहा है। दे आर सफरिंग फ्रॉम ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आ रहा है उसमें, जो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। इमोशनली वो क्लास में जितना टाइम मिलता है उतना उसके पास है मिलने का, आफ्टर दैट दे कन्फाइन टू द रूम ओनली। बिल्कुल। तो अंडर ये सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट स्कूल में जब हम ग्रुप में करते हैं तो दे लर्न हाउ टू वर्क इन ए ग्रुप। बिल्कुल। तो ये सोशियो इमोशनल NCFFS सोशियो इमोशनल और जो उसका एथिकल वैल्यूज है वो डेवलप करता है। तो सर पहला हो गया फिजिकल एंड मोटर, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा हो गया सोशियो इमोशनल एंड एथिकल। एंड व्हाट इज द एथिकल? थर्ड है कॉग्निटिव, ओके, माने अंडरस्टैंडिंग। ओके, उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे वो समझेगा, बच्चा कैसे समझेगा हर चीज को, वो कब समझेगा, जब वो खुद से करेगा। बिल्कुल। लर्निंग बाय डूइंग, देन ओनली दे विल लर्न। करेक्ट। तो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। तीसरा है आपको फोर्थ लैंग्वेज एंड लिटरेसी। ओके, उसको बोलना आना चाहिए। बिल्कुल। NEP पूरा फोकस कर रहा है, वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन इन देयर ओन मदर टंग। ओके, एंड दैट्स व्हाई नाउ they have made mandatory that the 2 native language and 1 international. Correct. These 2 native, if we belong to North India, we have to study Hindi and Sanskrit. Okay. And 1 international, that is English. Okay. Now again creates problem. Many of the schools in NCR and any other part of the country, we have 1 more international, French, German, Spanish, and all these. So now there is a 4 language. Yes. So that's why moment the CBSE announced, the schools are now removing French and Spanish and German teachers. So after that, Dr. Biswajit Saha, the director skill education, yes, they included these foreign language, the additional foreign language, okay, as a skill subject. Okay. So those child, they will opt French also. So he or she has to study 4 language. Okay. तो language और लिटरेसी बहुत जरूरी है, और उसमें भी निपुण भारत जो कंसेप्ट आया उसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, ये प्राइमरी लेवल। एक लाइन में बता देंगे कि निपुण भारत क्या होता है? निपुण भारत वही है जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी हम डेवलप करना है हमारे बच्चों को, कि by the time child enter in class 2, he should have very good command, he or she should have good command over language, numeracy as well as लैंग्वेज में। और हमको मैंडेटरी करना है कि टीचर भी जितना कोशिश कर सके अप टू फाउंडेशनल स्टेज मदर टंग में ही पढ़ाए। करेक्ट। क्योंकि दैट्स दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ NEP 2020। बिल्कुल। दे आर नाउ गिविंग एम्फेसिस कि एक तमिलनाडु का बच्चा है तो वो तमिल में सीखे। अब हम लैंग्वेज में अगर हम बाहर के एडिशनल लैंग्वेज हम डालते हैं तो नेचुरली वो कम्युनिकेशन गैप है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई थिंक इंडिया में अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह पेरेंट्स आर ट्रांसफरिंग, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड
दैट लैंग्वेज। आपको लगता है सर ये एक प्रॉब्लम आएगी जो लोग? नहीं, प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद दैट कि हमारे बच्चे को हमने इंग्लिश मीडियम में डाला है और अब वो कह रहे हैं हिंदी में पढ़ाओ। बिल्कुल। तो ये एक्सेप्ट में टाइम लगेगा, बट इट स्टार्ट्स वर्किंग। ओके। वंस वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इन हिंदी, मीडियम अगर हम हिंदी रखते हैं तो बच्चा ओपन अप हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नाउ देयर जो नहीं बोल पा रहा था, नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। सो लैंग्वेज एंड लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पांचवा जो है वो है एस्थेटिक एंड कल्चर। Okay. वी मस्ट नो आवर कल्चर। ये छोटे बच्चे से हमको उसमें एस्थेटिक ब्यूटी, विच वन इज गुड विच वन इज बैड, उसको एक सेंस आएगा। अभी वो फर्क नहीं कर पा रहा है, बट फाउंडेशनल स्टेज में ये हमें एस्थेटिक सेंस उसमें देना है कि ये अगर फादर पूरे बियर्ड के साथ है और सडनली एक दिन फादर अपीयर होता है क्लीन, तो बच्चा का रिएक्शन यू जस्ट सी। समटाइम्स द चाइल्ड इज क्राइंग, व्हाट हैपेंड टू हिज डैड। बिल्कुल। सो उसको अब बियर्ड व बिना बियर्ड का जो अगर फादर सामने आया तो वो उसको बुरा लग रहा है। करेक्ट। तो ये एस्थेटिक सेंस उसमें आ रहा है। Okay. तो हमें ये दिखाना है, मास्क लगा के टीचर्स इन आवर स्कूल वी आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजी आल्सो, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी। उसके थ्रू हम रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड में जाके बच्चों को एस्थेटिक सेंस और जो कल्चर है, सपोज ए चाइल्ड बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, करेक्ट, तो दे नो देयर कल्चर, वी हैव टू प्रिजर्व। हमने बंद कर दिया। यस। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल ऑफ द आउट ऑफ द ट्रैक बोल रहा हूँ। अभी हमारा त्योहार है दीपावली का। हाँ जी सर। अभी ये लोग, अब हमारी जो माँ बहनें हैं वो बिंदी लगाती हैं। बिल्कुल। अभी बिंदी बंद कर दिया, बिजनेस मार्केट ने पूरा हटा दिया। हमारा जो कल्चर था दीप का, उसके बदले केक और ये और कई तरह के हम खत्म हो रहे हैं। हम अपने हर कल्चर को, मैं कोई धर्म पे नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एवरी रिलीजन शुड बी ऑनर्ड, और उनके जो कल्चर है वी हैव टू प्रिजर्व। बिल्कुल। नहीं तो आने वाले समय में तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा क्या कल्चर रहा। तो फाउंडेशन स्टेज इज अ राइट स्टेज वेयर वी कैन मेक आवर चाइल्ड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर आवर कल्चरल वैल्यूज, हमारा कल्चरल वैल्यू और हमारा जो एस्थेटिक सेंस है वो क्या है। तो और इसको आगे एक्सप्लेन, जैसे बच्चा क्लास 1 में जाएगा वहां हम इसको मैजिक बॉक्स के रूप में, दैट इज कॉल्ड जादुई पिटारा। इट लॉन्च्ड ऑन 23rd of Feb 2023 लास्ट ईयर, एंड नाउ दिस सेशन ऑनवर्ड इट्स मेड मैंडेटरी कि मैजिक बॉक्स के थ्रू टीचर्स क्लास 1 और 2 को, एंड मेनी ऑफ द पब्लिकेशन कंपनी जो पब्लिशर आ रहे हैं, दे आर वर्किंग गुड इन दैट वे, दे आर प्रिपेयरिंग देयर करिकुलम। यस। सीबीएसई कह रहा है कि एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे, ऑफ कोर्स फॉलो करेंगे, हम कोई डिस्प्यूटेड थिंग्स नहीं होगा, बट वी शुड बी ऑल्सो ग्रेटफुल टू द प्राइवेट पब्लिशर बिकॉज दे आर मेकिंग, they are working hard to develop these according to the NEP 2020। बिल्कुल। तो अभी आपको अपने को पब्लिशर्स को भी चाहिए कि वो अपडेट करें, और ये जो 5 सेंस है NEP का फाउंडेशनल स्टेज के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जो जादुई पिटारा आपने बताया, मैजिक बॉक्स, हाँ जी, वो क्या है सर? ये मैजिक बॉक्स में हम जो पहले जो टीचिंग पढ़ा रहे हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट फूड ग्रेन्स, तो बच्चे का हमने 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ्स दिखा दिया। हाँ जी। कि देखो दिस इज अ ग्राम, ये चना है, मटर है, पीसम सटीवम ये है, दिखा दिया। बट वो तो ओरिजिनल देख ही नहीं पा रहा है ना, वो तो 2 डायमेंशनल ही दिख रहा है। हाँ जी। तो मैजिक बॉक्स में हमारे टीचर विल ट्राई देयर बेस्ट टू जस्ट ट्राई एक्सप्लेन द थिंग्स यूजिंग द नेचुरल और ओरिजिनल। ओके। तो बच्चा खुद देख रहा है, मतलब जो हम फोटो में देखते हैं वो हम रियल लाइफ में, और उस माध्यम के थ्रू, जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि वॉशिंग मशीन है तो वो कपड़ा साफ करता है। बिल्कुल। तो उसी में सिंबॉलिक बना के कि 2 child you just behave like a washing machine, and 1 child will be the cloth. A kind of experiential learning. That is called experiential learning. Unless until they will learn the things their natural habitat, number 1, number 2, कि वो उसको पूरा अपनी आंखों से रियल टाइम विजुअलाइजेशन करे। बिल्कुल। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैजिक बॉक्स। तो सर ये 5 पिलर्स हो गए फाउंडेशनल स्टेज। क्विकली 2 मिनट्स में हम बाकी
कोई बाकी जो एनईपी के जो आपने पार्ट सर हैं, बताया 5+3+3+4, तो 5 हो गया थ्री जो नर्सरी से नर्सरी ग्रेड 2। और ये फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद जो अगला 3 स्टेज है दैट इज कॉल्ड प्रिपरेटरी हाँ। स्टेज। अब यहाँ से हम फॉर्मल सिस्टम पे आए कि चाइल्ड विल राइट एग्जामिनेशन, प्रॉपर असेसमेंट, वर्डिंग, ये सब होगा इस प्रिपरेटरी स्टेज में। एंड रिमेंबर सीबीएसई ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए वेरी गुड थिंग, सफल, SAFAL, क्या होता a है? structured assessment for analyzing learning. Okay. Whatever a child learned over the period of 5 years, that is in foundational stage, that will be assessed by the CBSE through the SAFAL, class 3rd, class 5 and class 8. Okay. 3 SAFAL, Okay. 3 SAFAL एग्जाम, और वो ऑनलाइन, उसमें 3 सब्जेक्ट का असेसमेंट कर रहे हैं ये लोग, मैथमेटिक्स, साइंस एंड लैंग्वेज। Okay. दैट्स ऑल। अभी सफल अभी हम सारे स्कूलों में चल रहा है। टुडे ऑल्सो वी हैव इन आवर स्कूल द क्लास 5 चिल्ड्रन appear in the सफल। Last year it was a pilot and this year is a full-fledged. Okay. And CBSE will give the result. It's simply give the information to the principals and the management कि भाई आपका स्कूल ऑल इंडिया में यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सफल से ये पता चलेगा, सफल से ये पता चलेगा कि वो 5 साल हम लोगों ने, हमारे प्री प्राइमरी टीचर ने, नर्सरी टीचर ने क्या पढ़ाया। बिल्कुल सही। एक ऑनेस्ट आपके पास रिजल्ट आएगा। करेक्ट। प्रिपरेटरी स्टेज फिर 3 इयर्स कंप्लीट के बाद जब मतलब अब बच्चा हम ग्रेड 5 तक आ गए, 3 हाँ, 4 5 3 4 5 का एंड अनदर सफल 2। ओके। फिर वो जो 3 इयर्स में जो बच्चा पढ़ा वो फिर 5 के फाइनल में एक सफल हो जाएगा। ओके। और फिर 6 7 8 थर्ड स्टेज आ गया, थर्ड दैट इज कॉल्ड मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी stage, स्टेज, middle मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज का जो फाइनल है दैट विल बी द क्लास 8 and then after 9 10th 11th 12th secondary and senior secondary board exam we have। syllabus change हुए हैं, NCERT is working very hard। recently we have Sahodaya meeting in our school and I was very fortunate to interact with Dr. Rajput। he is the director publication सर of आप NCERT। एक्सप्लेन कर देंगे सहोदया क्या होता है? सहोदया एक सीबीएसई के टीम है स्कूल्स की, जैसे हमारी एनसीआर ईस्ट है, हाँ जी, हम लोग ईस्ट में है। मैडम दीप्ति शर्मा इज हेडिंग, शी इज द प्रिंसिपल ऑफ जेवर प्रज्ञान स्कूल, लीड कर रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारी मंथन की पूनम मैम है। और हम लोग सब जितने प्रिंसिपल्स हैं, एवरी ईयर 2 times हम लोग लॉट ऑफ एक्टिविटीज देयर, वी आर एक्सचेंजिंग आवर टीचर आइडियाज, मतलब हर एस्पेक्ट को हम लोग डील करते हैं थ्रू सहोदया। अभी जनवरी में हमारा नेशनल होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू इनवाइट सम अदर पीपल ऑल्सो। तो सहोदय के माध्यम से हम इसमें जितने आपने देखा एनईपी के पार्ट हैं, ये हम इसको आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो, अभी आपको पता है कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इज मैंडेटरी नाउ। 50 आवर्स सभी टीचर्स को इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स को करना है। हमें सीबीएसई से गाइडलाइन है, ये अपडेट करना है, हम सारे टीचर्स को अपडेट रखना है। और ऑब्वियसली यू नो लॉट ऑफ चेंजेस एवरी ईयर। अभी एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज करा है, अपने हर सब्जेक्ट्स को उन्होंने रिवाइज करा है। एंड आई होप कि ये एनईपी, इस एनईपी के साथ साथ दिस ईयर सीबीएसई का एक बेहतरीन प्लानिंग की गई कि यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्कोर होते हैं, अब इन्होंने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्कोर दिया है। 1200 आवर्स ऑफ टीचिंग is a mandatory in a session, and every suppose you completed every 40 hours, अगर आपने 30 hours complete किया तो आपको 1 स्कोर कार्ड मिलेगा। ओके। तो अगर मैक्सिमम स्कोर 40 जाएगा, ये सर टीचर्स के लिए? नो इट्स फॉर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड। हर सब्जेक्ट पे क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा उसको। दिस इज कॉल्ड नेशनल क्रेडिट स्कोर। Our school, Jagran School, one of the school in NCR, has been selected for pilot project of NCRF. Amazing. हाँ, ये हमने शुरू कर दिया। अभी फर्स्ट बैच ट्रेनिंग भी हो रहा है। NCRF, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क रिकॉर्ड। NCFR के अंदर सीबीएसई हमको एसेस करेगी
हम अभी हर सब्जेक्ट्स को उसमें है कि मैक्सिमम स्कोर नॉर्मल 40 जा सकता है। इफ ए चाइल्ड कंप्लीट 30 आवर्स तो 1 स्कोर। Okay. और हमारे यहाँ चूंकि यूनिवर्सिटी में तो 1200 आवर्स हैं, बट स्कूलों में उतने नहीं है, तो उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए उतने आवर 220 170 लाइक दैट होंगे। Okay. हर सब्जेक्ट के लिए साइंस लैंग्वेज इसके ज़्यादा होंगे। अगर कोई बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट लेता है तो उसकी जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके। उसके लिए अलग अलग स्टेज में अभी उन्होंने पायलट डाला है क्लास 6, 9th एंड 11th। ओके। ये 3 ठीक। बस अभी यही करेंगे, बट we have already started almost in our report card also. All school of the country will ask to include that credit Okay. score. ठीक है। मार्क्स के अलावे आपको क्रेडिट स्कोर भी डालने होंगे। ठीक है। और अभी इसी के साथ कंटिन्यूटी में लास्ट वीक ओनली वी रिसीव ए सर्कुलर फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश एंड इन फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी, अपार ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट्स रजिस्ट्री, ओके। अपार आईडी, ओके। 12 डिजिट्स होगा, आधार इसके साथ जुड़ जाएंगे। Just like the social service number in US and Germany and Europe, we all should have APAR ID. और हम स्कूल से शुरू कर रहे हैं right from nursery to class 12. ठीक है। We had given a circular to the parent कि please give your consent so that ये automated permanent account registry ID, APAR ID, ये आधार से जुड़ा होगा। और साथ में जो यूडाइस है ऑलरेडी, यूडाइस तो आप जानते हैं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये यूडाइस में हर स्कूल का यूडाइस नंबर है, हर बच्चे का उसमें हम यूडाइस डालते हैं, उसका रिकॉर्ड अब वो आधार कार्ड से लिंक है। एंड नाउ दैट इज द अपार। ओके। अब अपार विल बी द फाइनल, दैट विल बी कनेक्टेड विद द डिजी लॉकर। ओके। एवरी चाइल्ड का डिजी लॉकर राइट फ्रॉम नर्सरी टू डॉक्टरेट, अपार आईडी। अपार आईडी ये एक नया इंक्लूजन हुआ है जो मुझे इस महीने के एंड तक में अपने सारे 2000 प्लस बच्चों का अपार आईडी जनरेट करना है। इट इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल स्कूल, बट उन्होंने कहा है कि बेटर यू टेक ए कंसेंट ऑल्सो फ्रॉम द पेरेंट्स। और पेरेंट्स को पीटीएम बुलाइए। अगर कोई पेरेंट्स अपोज करता है तो उनको आप ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि दीज आर द एडवांटेज ऑफ अपार। तो ये एनसीआरएफ एंड एनईपी ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को आने वाले टाइम पे आगे इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और बहुत हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन सर। आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से बताए। सर अब ये तो हो गया कि गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने क्या दी है, इसका सर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कैसे हो रहा है और स्कूल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और ये फुल्ली इम्प्लीमेंट कब तक होगा? क्या आप स्कूल्स फीडबैक दे रहे हैं गवर्नमेंट को और चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हो रहा है सर? एक बार थोड़ा हमें गाइड करें। इट्स अ वेरी राइट क्वेश्चन। एक्चुअली theoretically it looks very nice, yes, no doubt about it, like अगर every हम document हर डॉक्यूमेंट्स करता है, बट प्रैक्टिकल में क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वी हैव टू मेक आवर पेरेंट्स अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा गैप हो रहा है। प्लस जो हमारे टीचर्स जो 80s के हैं, जो मेरे जनरेशन के हैं या मेरे बाद के जनरेशन के हैं, उनको एडॉप्ट करने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑल्सो इज वन ऑफ द चैलेंज टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज। क्योंकि आपको if you want to introduce this NEP, NCRF and all other suggestions, we need proper infrastructure. Correct. और शहरों के स्कूल जो पब्लिक स्कूल हैं वहां तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। सर कौन से एलिमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अभी इसमें टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा है। हमारे मोदी सर का माननीय प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य है कि कौशल शिक्षा, स्किल एजुकेशन। तो अभी जो अभी आपने सुना होगा कि आईआईटी मुंबई और आईआईटी खड़गपुर में प्लेसमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल। तो रीजन क्या है प्लेसमेंट होने का? हम स्किल्ड पर्सन, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग स्किल्ड पर्सन। हम तो किताबी पढ़ लिया
और उसको इम्प्लीमेंट करने, प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं. एंड दैट्स व्हाई in 2017 when CBSE introduced skill कौशल शिक्षा, I was the first to apply and got affiliation for artificial intelligence and data science and IT. सर स्किल एजुकेशन में यही 3 आते हैं? नहीं है, उसमें 9 डिसिप्लिन है. ऑल टुगेदर 9 जो लॉन्च हुआ है. दैट इज ABCDEFGHI स्किल एजुकेशन. हाँ. A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, C फॉर साइबर सिक्योरिटी, D फॉर डाटा साइंस, E फॉर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी. एक्सटेंडेड मतलब ऑगमेंटेड एंड रियल, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एंड रियल. वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी. हाँ, तो ऑगमेंटेड रियलिटी. F full stack developer. G GitHub gamification. H hypertext marker language HTML5 अब 6 लॉन्च हो रहा है. And I Internet of Things. ये 5 जून 2022 को धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद CBSE. 9 डिसिप्लिन्स ऑफ स्किल एजुकेशन. हाँ, स्किल एजुकेशन. और उन्होंने कहा था कि ये स्कूलों में आए. And we have 4. 5th we are in the process to start GitHub. मेरा ड्रीम है, I have a dream and I like my all school fellow principal रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपने स्कूल में स्किल शिक्षा राइट फ्रॉम क्लास 6 शुरू करेंगे. ऑफ कोर्स डाटा साइंस मिडिल स्टेज से स्टार्ट करें. बिल्कुल मिडिल स्टेज से. और मैं प्राइवेट पब्लिकेशन हाउसेस को भी मैं यही कहूँगा कि वो 6 क्लास से जो कंप्यूटर साइंस की जो बुक आ रही है उसमें वो अमेंडमेंट करें अकॉर्डिंग टू दिस ABCDEFGHI. बिल्कुल वो डिसिप्लिन को रखें, ज्यादा से ज्यादा उसमें अपडेट करें. क्योंकि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट बाय द एंड ऑफ 2030 9 बिलियन जॉब AI करेगा और डाटा साइंस करेगा. बिल्कुल. और मैं आपको बता दूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि once when I introduced this तो बड़े रेसिस्ट हुए. हमारे पास फीज रोबोटिक सॉल्यूशन भी है, अटल थिंकिंग लैब भी है. बट फाइनली हमारा स्कूल लास्ट ईयर AI का फर्स्ट बैच दिया डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें करीब 4 चिल्ड्रन आउट ऑफ 28 गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन AI. And data science we introduced 2 years back. Now this year the first batch of 10th, and after 2 years we will produce. And our school having tie-up with IIT Madras. Okay. IIT Madras ने data science के लिए CBSE के स्कूलों को invite किया, और हमारे करीब 40 चिल्ड्रन रजिस्टर्ड हो चुके हैं. Okay. उस कोर्स के लिए. तो आप समझ सकते हैं कि अगर स्कूल का प्रधानाध्यापक मैनेजमेंट अगर चाह ले तो ये जो स्किल सब्जेक्ट हैं, चूंकि अल्टीमेटली यही आगे उनको ले जाएगा. बिल्कुल चाहिए. अब सिंपल लॉजिक है. एक बच्चा, आई एम समटाइम्स सरप्राइज टू नो दैट मेनी ऑफ द स्कूल इन द कंट्री स्टिल हैविंग कंप्यूटर एप्लीकेशन CA. यस. कोई यूज नहीं है. स्टिल मेनी ऑफ द स्कूल हैविंग CA. कोई, इट्स वेरी, मुझे तो लगता है अजीब कि ये वो मैनेजमेंट कैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोई वैल्यू नहीं है. यस. जब ऑलरेडी आवर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च कर दिया कि भाई अब आप स्किल एजुकेशन पे फोकस करिए. स्किल एजुकेशन सिर्फ ABCDEFGHI नहीं है, इसके अलावा और जैसे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस मल्टीमीडिया, मास मीडिया, बिकॉज दैनिक जागरण इज द मास मीडिया हाउस. तो हम उसमें क्लास 6 से डाल रहे हैं. Okay. We have studio, we have all, we are going to community radio. तो स्किल एजुकेशन में और भी चीजें आती हैं? बहुत हैं. 237 प्लस 200 डिसिप्लिन अवेलेबल हैं जो CBSE ने अलग अलग स्टेज के लिए डाल रखा है. Okay. तो हमें प्रमोट करना है बच्चों को कौशल शिक्षा पे, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट जो आपने कहा कि कौन सा हिस्सा जो है ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पोर्शन है. एक सर आपने 2 प्रॉब्लम्स बताई, एक तो पेरेंट्स की एडॉप्शन और एक इंफ्रास्ट्रक्चर. तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके. अब बिग क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ अस, हाउ टू गेट स्किल टीचर्स. बिकॉज आप सभी जानते हैं कि इन आवर कंट्री, जब मैं 1993 में when I was in Bhutan, that time they offered me 43,000 neglect rooms per month. Okay. Our teachers is a low paid, and that's why we are not attracting. Yes.
हमारी तो ये इच्छा है कि अगर कोई भी कंट्री आगे बढ़ेगा, यू गो एंड सी इन सिंगापुर, यू गो एंड सी इन यूएस, वहां देखिए टीचर्स पे कितना इम्फेसिस है। वी इंस्टेड ऑफ यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूपीएससी आईएएस एग्जाम कर रही है, वी शुड हैव आईटीएस, इंडियन टीचिंग सर्विसेज। ये होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डायनेमिक हो जाए, आईटीएस करिए। क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर सेलिंग, यूनिवर्सिटी से जो कॉरेस्पॉन्डेंस जब से आया, आफ्टर completion of my doctorate, I joined full time 2 years B.Ed course before joining school from university. Okay. From Bardhaman University. 2 years residential. मैंने कहा नहीं, अगर मैं स्विच हो रहा हूँ स्कूल एजुकेशन में तो मुझे बीएड को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। बिल्कुल। तो हमारे पास अगर अच्छे टीचर्स होंगे, जब मैं अपनी बुक एक ड्राफ्ट कर रहा था, भारतीय भवन से मेरी बुक भी है बायोलॉजी में, डॉक्टर माहेश्वरी के साथ भी मैंने किताबें लिखी, तो मैंने महसूस किया कि आपको पहला तो पैशन होना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आज के डेट में बहुत जरूरी है, और ये तभी आप अच्छे ब्रेन को अट्रैक्ट कर पाएंगे वंस यू विल पे एंड गुड सैलरी, गुड फैसिलिटीज, देन ओनली राइट पीपल विल ज्वाइन। सर ये तो हो गई हमारी गवर्नमेंट साइड की बात और एजुकेशन साइड की बात कि टीचर्स के लिए क्या करना चाहिए। सर आपके टीचर्स के लिए क्या एडवाइस है, 4 या 5 एडवाइस टीचर्स के लिए कि टीचर्स कैसे अपने आप को अपडेट, अपस्किल और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के, क्योंकि आजकल सर हम जो देख रहे हैं, आपने भी, आपको ज्यादा पता है कि स्कूल्स में टीचर्स को टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, टीचर्स बहुत रेजिस्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी के लिए, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपका कि उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए? राइट, देखिए व्हाट वी आर फेसिंग एंड ऑब्जर्विंग, कोई भी नया चीज, सपोज इफ यू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, नोबडी विल एक्सेप्ट स्टेटअप। और खास करके मेरे बाद के जनरेशन के जो टीचर्स हैं, हाँ, इन योर जनरेशन एक्सेलेंट, दोस्त दे आर ज्वाइनिंग स्कूल, वो पैशन से आ रहे हैं। और वो तुरंत, चूंकि वो कंप्यूटर सेवे हैं तो तुरंत अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आज से 20 इयर्स बैक, 25 इयर्स, उनके लिए तो मैं यही सलाह देता हूं, मैं अपने टीचर्स, आई एम फेसिंग दिस बिकॉज मोर देन 60% स्टाफ हैविंग दैट बैकग्राउंड। माय सजेशन टू देम कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू एंड सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, you have to update yourself, daily updating. You will be surprised to know I am still taking classes 11, 12, and before going to the class 1 hour मैं पूरा follow करता हूँ। Okay. अपने को अपडेट करता हूँ। तो आपको कंप्यूटर सेवे भी, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन तो होना ही होना है, साथ में अपने को अपस्किलिंग करना होगा। सपोज स्पेशली दोज दे आर एसोसिएटेड विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आने वाले टाइम पे, चूंकि अभी नाउ वी हैव ए स्मार्ट क्लासरूम, हमारा स्मार्ट क्लासरूम हैविंग बोर्ड एंड ऑल, we are going 3-dimensionally, plus we have experiment, our 6th class students are making circuit. Yes. अगर क्लास 6 का बच्चा सर्किट बना रहा है तो फिजिक्स और मैथ हो गया। बिल्कुल सही। बट क्वेश्चन इज दैट टीचर को उसमें इन्वॉल्व होने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो अगर मैं अपने मित्रों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सरवाइव करना है, इफ यू वांट टू सरवाइव, यू हैव टू अपडेट। आपको डेली पढ़ना होगा। आप पीरियड में जाने के पहले पूरी एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज व्हाट हैपन, यू विल नॉट सर्वाइव। आपको मैनेजमेंट बाहर कर देगा, क्योंकि पेरेंट्स दे आर पेइंग ह्यूज मनी। यस। इन रिटर्न्स उनको चाहिए। Yes. एंड दैट्स व्हाई यू माइट हैव नोटिस मेनी ऑफ द स्कूल आफ्टर कोरोना बंद हो गए। Yes. और अभी भी स्ट्रगल, काफी टफ कंपटीशन भी है, वेरी टफ कंपटीशन। तो हमें पेरेंट्स के लिए भी सजेशन है कि आप पूरा कुछ टाइम दीजिए। अभी पेरेंटिंग भी बहुत जरूरी है, बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। करेक्ट। उनके पास टाइम नहीं है। बच्चा, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लाइफ लीड कर रहा है। वो किसी से बात नहीं कर पाता है। वो हमारे काउंसलर हैं, हमारे काउंसलर को अजीब अजीब बातें बताता है, शेयर करता है, जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूं। एंड वी आर फेसिंग, वो क्यों इतना वल्नरेबल हो चुका है, हमें सोचना पड़ेगा। तो आप
कैरियर को लेके चलेंगे, आपके पास दो चीज है, एदर फॉरगेट अबाउट द ऑफिस स्प्रिंग, फोकस ऑन कैरियर ओनली, एज सम ऑफ इन यूरोप एंड इवन इन द इंडिया आप कह रहे हैं नो चाइल्ड इन योर जनरेशन. Yeah, many people are saying. नो चाइल्ड, यस इट्स अ गुड डिसीजन, इट्स अ गुड डिसीजन कि तुम बच्चे को जन्म दिए और आपके पास टाइम नहीं है. मैं फेस किया हूं, ऐसे पेरेंट आए हैं जो अपनी बच्चे को छोड़ के एक बेबी सिटर के साथ, वो बोले मेरा शूटिंग है मुंबई में, मेरा फ्लाइट है सर, बाकी चीज ये इसको समझा दें during the interaction of the pre-primary classes. Yeah. So I was shocked. If the mother had no time, then what will be the consequences of this child? ये बात कोई नहीं बोलता है. प्रिंसिपल साहब आपका स्कूल में तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए. Yeah. तो पेरेंट को भी है मैसेज, मैनेजमेंट को भी मैसेज है कि आपको सारे टीचर्स को, सारे सिस्टम्स को आपको अपडेट रखने पड़ेंगे. अगर आप फॉर्चुनेटली मेरा जागरण मैनेजमेंट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर चेयरमैन एंड वाइस चेयरपर्सन मैम, फ्री हैंड दे रखा है. एंड एज ए रिजल्ट ओनली इन लास्ट 7-8 years नाउ वी आर फ्लाइंग, वी गॉट ऑलमोस्ट ऑल अवार्ड्स. तो सर आपने जो NEP NCF की प्रॉब्लम्स बताई थी, पेरेंट्स का अडॉप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन स्किल एजुकेशन, और थर्ड प्रॉब्लम है सर ह्यूमन रिसोर्स. और सर कोई प्रॉब्लम्स आपके? एक और है, जो ट्रेनिंग हम CBSE जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर जो प्रोवाइड हो रहा है, उसमें मैंने कुछ देखा, हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, इट्स ए गुड थिंग कि और टाइम आएगा तो और बढ़ेगा, बट वी नीड कि हम और ज्यादा इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम को इन हाउस कराएं. ओके. हर वो कोशिश कर रहे हैं, अब ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी हो रहा है, एंड ऑलमोस्ट सारे टीचर्स दे आर गोइंग एंड ज्वाइनिंग द ये, तो ट्रेनिंग पार्ट तो बढ़िया चल रहा है. एंड आई होप, बट एट द सेम टाइम हमारे जब तक टीचर, अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीचर, बिकॉज ही और शी हैज टू एग्जीक्यूट इन देयर क्लासेस. अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे दी, एक और प्रॉब्लम हो रहा है. ये अभी एक नया सर्कुलर आया हमारे सेक्रेटरी का यूपी CBSE से कि भाई NCERT बुक लगाइए, यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी अदर बुक्स. हालांकि उन्होंने मना नहीं किया. कौन सा बुक सेलेक्ट हो, ये एक बड़ा टफ है, प्रिंसिपल के लिए भी, टीचर्स के लिए, कि मार्केट में इतने मशरूमिंग ग्रोथ हो गए हैं प्राइवेट पब्लिशर के with the huge money and all. अब उसमें सेलेक्ट करना, ये सिलेक्शन एक डिफिकल्ट है. CBSE ने मना नहीं किया है, लेकिन कहा है कि ये डिस्प्यूटेड कंटेंट के साथ ये बुक आ रहे हैं. अब कंप्यूटर की बुक देखें आप, लॉट ऑफ एरर, रातों रात बुकें छप के मार्केट में आ गई. NCERT की बुक अवेलेबल नहीं है. हाँ जी. ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. हालांकि अभी राजपूत सर से मेरी बात हुई, बोले नहीं अब तो हम पूरा देने को तैयार हैं. तो एक अच्छी बात है, NCERT जरूर, इट गिव्स द बेसिक्स ऑफ ऑल, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट नो सम अदर. तो ये भी एक डिफिकल्टी, मेजर डिफिकल्टी है, जो हम लोग इस पर बात नहीं करते हैं. बिल्कुल. कि विच वन इज द बेस्ट, हु विल डिसाइड. तो ये आप लोगों को सोचना होगा. आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात पे तय करें कि भाई सिलेक्शन ऑफ बुक्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइक द सिलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स. ठीक है सर. अब हमने तो बात कर ली इम्प्लीमेंटेशन की और प्रॉब्लम्स की. सर आजकल आप कुछ 5 ऐसी चीजें बताना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे स्कूल लीडर्स को, जो स्कूल आजकल बहुत सारे स्कूल स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ एडवाइस जिससे स्कूल्स बेटर होंगे. जैसे सर आप मानिए कि मैं एक 30-year-old एक स्कूल लीडर हूँ, तो आप मेरे को क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? बिल्कुल. देखिए, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ, ये पेरेंट के लिए है. पेरेंट और साथ में जो भी स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, जो मेन हैं या जो प्रिंसिपल हैं, उनको पेरेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल.
माने जितना ज्यादा हो, मंथ में एक बार तो जरूर बात करिए, जरूर बुलाइए, उनसे ओपन अप होइए। क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास बच्चे 5 to 6 आवर्स होते हैं, उसके बाद वो घर पे होते हैं। तो हमें पेरेंटिंग को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना कि स्कूल एजुकेशन में। हम अपने सारे मैनेजमेंट के लोग और प्रिंसिपल को मैं यही कहना चाहूंगा कि यू मेक योर चिल्ड्रन योर ब्रांड एम्बेसडर, एंड फाउंडेशनल स्टेज हेल्प्स, और ये फाउंडेशनल स्टेज ही करेगा। ठीक है सर। तो ये दो सर, एक तो हो गया इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, दे शुड इंक्रीज जी। सेकंड इज फोकस ऑन फाउंडेशनल स्टेज। बिल्कुल। और कुछ सर? थर्ड पॉइंट है कि यू शुड हैव अपॉइंट क्वालिटी टीचर, टीचर्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। अब कई मैनेजमेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, उनका सर्टिफिकेट होल्ड पे रखते हैं, उनका अभी तो मेरे को आई केम टू नो एंड सरप्राइज की पेमेंट पूरा दिखाते हैं और कहते हैं कि वापस करो। तो दीज आर अनएथिकल। ये टीचर कम्युनिटी को, मैंने तो ऐसे टीचर को कहा कि इससे बेहतर है तुम रिजाइन करो, इस प्रोफेशन को छोड़ो। यू शुड हैव करेज टू से सॉरी सर, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर ऑफरिंग मी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब तक ये नहीं बंद होगा, ये वन ऑफ द ड्रॉबैक है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये फैक्ट है। ये हमारे कंट्री में ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये हमारे समय से भी हो रहा है, आज भी हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं, तब तक आप एजुकेशन को, ये जो NEP 2020 और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, ये कि भाई बाय सुपर पावर बन जाना, टॉप हो जाना, ये तभी होगा जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को हम इंप्रूव करेंगे। ठीक है सर, ये तीन ही एडवाइस हैं, आप कुछ और भी देना चाहेंगे? ये तीन मेन पॉइंट्स हैं। ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जो हमें ये करना है, बाकी जो है वो ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे। जब आपके पास क्वालिटी टीचर होगा, फाउंडेशनल स्टेज में अच्छे टीचर, पहले तो पूरे ओवरऑल टीचर्स अच्छे होंगे, प्रिंसिपल्स, एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए, पूरा वाइड एंगल, कन्फाइंड नहीं कि भाई अपने में रहे। और वो गया जमाना हिटलरियन। पहले के हमारे जो प्रिंसिपल थे, हम लोग जहां जिस स्कूल के प्रोडक्ट है, वहां प्रिंसिपल किसी से मिलता ही नहीं था। हमें ये कहा गया कि यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम। हमने यस, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर माय पेरेंट्स। यस, even during the corona, our school is the first school where we are calling all the parents and I was there. तो ये आपको, ये एक इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, ये सबसे अहम है। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा है पिछले 20 साल के प्रिंसिपलशिप का। सर, अब टीचर्स की हमने बात कर ली, हमने पेरेंट्स की बात कर ली, स्कूल मैनेजमेंट की बात कर ली। सर, कुछ 2 या 3 एडवाइसेस आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल लैंडस्केप बहुत चेंज हो रहा है, डिजिटल बहुत आ रहा है, साइबर सेफ्टी की बात हो रही है। तो कुछ 3 प्रॉब्लम्स आप जो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, और 3 एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स के लिए देना चाहिए। देखिए, जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, बिकॉज टू मच एक्सपोजर टू ये आपके जो डिजिटल गैजेट हैं। अभी क्या हो रहा है, मैं एक ट्रेवल एयरपोर्ट से गुजर रहा था, एक छोटा 3 साल 3.5 years old baby and mother has given mobile, और उसको खाना खिला रही है, हल्का सा वो मोबाइल देख रहा है। पेरेंट को एक कहीं ना कहीं ये करेज डेवलप करना होगा कि इफ आई से नो, नो मीन्स नो। ये बच्चा डिमांड, चूंकि सिंगल चाइल्ड है तो टू मच पैम्परिंग हो रहा है। अब वो जो चाह रहा है उसको 2.5 साल के, आप देखिए, मैं कोरिया में था, मैं जापान में गया, मैं बहुत जगह घूमा हूँ कई कंट्री में, मैंने देखा वहां अभी भी मोबाइल बैन है प्राइमरी एजुकेशन में। यहाँ तो आप देख रहे हैं, आप कहीं भी जाएं, सर, वहाँ बच्चों के पास फोन नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर वो है तो पनिशेबल है। वहां यू आर नॉट सपोज टू गिव मोबाइल टू देयर, रेस्ट्रिक्शन है, एज है। प्री प्राइमरी लेवल तक उसको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, और अगर एक्सपोजर है भी तो बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है। सर, ये तो एक पॉइंट आपने बताया कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए। सर, स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी? कुछ 2 या 3 स्टूडेंट्स के लिए
द इम्पोर्टेंट एक तो मैंने बताया कि जितना हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उसको दूर रखें उतना बेहतर है। क्योंकि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इंडिया में मायोपिया इज ए आई प्रॉब्लम। Yes. 1.2 करोड़ चिल्ड्रन फाउंडेशनल स्टेज के सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। सर ये तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हाँ, और स्कूल में हम जो एजुकेशन दे रहे हैं तो पेरेंट अगर वो उसको दूर रखेगा, हम गैजेट को यूज स्कूल में भी नहीं कर रहे हैं, वी आर शोइंग ऑन द बिग स्क्रीन, Yes. not allowing. That's why during the online classes it was not successful in the primary year में। तो एक तो गैजेट हो गया, दूसरा हम बच्चों को, पेरेंट्स को जितना लर्निंग बाय डूइंग उस हैंड ऑन प्रैक्टिस उसको जितना डालें पेरेंट्स। सर बट हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या देंगे? मैं सर एक स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में हूँ। आपने बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस देखे होंगे बिल्कुल। आजकल टेक्नोलॉजी, तो आप मुझे एज अ 15, 16, 17 ईयर ओल्ड क्या एडवाइस देंगे कि मुझे सर क्या करना चाहिए आगे? मैं अपने सीनियर बच्चों को, दैट्स व्हाई वी हैव पीयर एजुकेटर प्रोग्राम, ओके उसके अंदर हम बताते हैं कि हाउ टू यूज दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जुडिशियसली। ओके यूज करना है, हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, बट ऑल द टाइम मिस्टर गूगल को टच करो। गूगल इज नॉट गिविंग यू ऑलवेज राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इवन विकिपीडिया इज ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट। तो आप हर चीज गूगल पे जाए। दैट्स वाई सीबीएसई क्या कह रही है कि रीडिंग के तरफ आओ एंड राइटिंग के तरफ आओ, ये दोनों छूट रहा है और इतना शॉर्ट हो गया है। आपने, यू माइट हैव सीन 4, 5, 6 इयर्स का बच्चा है, वो मोबाइल को एक रील को देखा, दूसरा तीसरा, ये रेस्टलेसनेस आ रहा है। इट इज कॉल्ड जुगन रूहू एंड जुग डिस्पोजिशन। मतलब इतना रेस्टलेसनेस हो रहा है कि कोई भी चीज, अब वही चीज जो वो मोबाइल में मूव फॉरवर्ड कर रहा है, वही चीज वो अपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के चैप्टर में भी देखना चाह रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये मैं अपने 11, 12 के बच्चों को यही कहता हूं कि बेटे एक दिन बिल्कुल गैजेट फ्री रहो, 24 आवर बिल्कुल मोबाइल को छोड़ दो। ठीक है सर, टेस्ट प्रैक्टिस एक तो हो गया यूज गैजेट्स प्रॉपरली। दूसरा प्रैक्टिस जो है, राइटिंग प्रैक्टिस जितना करोगे, कोई भी चीज समझ में आ रहा है जो हम अपने जमाने का यूज करते हैं। मैं अपना मेमोरी को बहुत ग्रेट नहीं मानता हूं, बट मैंने जो प्रैक्टिस करी है कि एक बार अगर मैं पढ़ लेता हूं, मैं 5 to 6 टाइम्स उसको लिखता हूं, कोई भी डिफिकल्ट थिंग्स, फिर मैं कभी नहीं भूलता हूं। तो यही बच्चों को कहता हूं कि जो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है, ये मेरा नुस्खा 100% परफेक्ट है। टीचर जो बोल रहा है, वी हैव टू माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। आपको पता नहीं होता है मेमोरी साइकिल। कई टीचर कहता है अरे ये तो बेकार है, ये तो स्लो लर्नर है। कोई स्लो लर्नर नहीं होता है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है स्लो लर्नर है ब्राइट का। ब्राइट वही है, दे ट्रेन देयर मेमोरी। सो वी हैव टू काइंड ऑफ चिल्ड्रन, और we have two kind of memory, trained memory, untrained memory. Those children, they are not doing well, they are having untrained memory. सर बट टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या हमें अपनी मेमोरी या मेमोराइज करने चीजों से फायदा है कुछ? बिल्कुल फायदा है, क्योंकि हर समय आप डिजिटल में अगर रहेंगे तो आप तो ब्लैंक हैं। रिटेंशन जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड नहीं होता है कोई भी चीज का, तो आपको एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे? इसलिए वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड ऑरेटर। सर आपका मतलब है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि आर्टिकुलेशन जो आप समझ रहे हैं उसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन और कर वो कैसे होगा? बेस्ट तरीका है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, लिसनिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। Whatever teacher, comma, full stop, writing. Back to home, 4 o'clock, open whatever you have written on the book, and then you go through it. ओके And you see the beauty. ठीक है सर, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो यूज गैजेट्स प्रॉपरली एंड राइटिंग प्रैक्टिस। सर लास्ट कुछ पॉइंट आप स्टूडेंट्स को मुझे एडवाइस करेंगे कि जैसे मैं 15 साल का एक स्टूडेंट हूँ, आपके स्कूल में पढ़ रहा हूँ, और एक चीज सर आप बताएंगे कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ भी बेटर हो आगे? बिल्कुल, मैं एक और जो इंडिविजुअल लेवल से है, रूटीन लाइफ एंड 3 चीज याद रखे वो, चूंकि अल्टीमेटली आवर बॉडी इज ए मशीन,
what to eat, how to eat and when to eat. ओके अगर ये 3 चीज बच्चा सीख ले, क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है. There shouldn't be preferential mode of feeding. कि I don't like bitter gourd तो मैं नहीं खाऊंगा. You might have noticed in your home, अगर आप कोई फैमिली फंक्शन कर रहे हैं और कोई रिलेटिव आती है, मैडम, मैं तो मदर को ही मेन कल्प्रिट मानता हूं, वो तुरंत बोलती है आपकी हमारी माँ को, करे क्या करेला बना दिया, मेरा बेटा करेला नहीं खाता है. My son is not eating Abelomoscus esculentus, that is lady's finger, भिंडी, राम तोरई, वो नहीं खाता है. तो क्यों नहीं खाता है? जन्म लिया, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं हुआ, आपने प्रेफरेंशियल मोड ऑफ फीडिंग डेवलप कर दिया. पूरी जिंदगी वो ना तो दही खाएगा, ना करेला खाएगा और ना वो भिंडी खाएगा. अब क्या होगा? द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इन द भिंडी, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर देयर एलिमेंट्री ट्रैक्ट. तो सर तीसरा है आपका ईटिंग रूटीन. ईटिंग रूटीन, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट. अब खाने का आपको देखिए, ये सिंपल प्रैक्टिस है. मैं बच्चों से बोलता हूं असेंबली में कि बेटे, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मेस्टिकेट द फूड बिफोर सॉलोइंग. कितना बार पता है? क्लास 9-10 में मैं पढ़ाता हूं 40 टाइम्स टिल इट डिसअपियर्ड. अभी डायबिटिक हो रहे हैं बच्चे क्लास 11-12 में. क्यों हो रहे हैं? पूरा यहाँ जो गॉड हैज गिवन अस 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, इसका लोड पेनक्रियाज को दे रहे हैं. 1 2 मदर एक ग्लास पानी, 1 2 3 निगल लिया, क्योंकि बस में चढ़ाना है उसको. तो ये सारी चीजें जो है, हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड. सिंपल थ्योरी. आप मेरा इतना एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, इसका यूज तभी है जब बच्चा क्या खाए, कब खाए और कैसे खाए. बेसिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि डाइट प्लेज एन इमेंस रोल इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड. बिल्कुल सही. अभी हर 70% चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस, इन्फ्लुएंजा, ब्रेन हेमेलोकैटेरलिस, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से. क्यों हो रहा है? सर जैसे आपने फिजिकल डेवलपमेट बताया फाउंडेशनल स्टेज में, क्या ये उसका ही पार्ट? वही पार्ट है. क्योंकि बचपन से आपको ये करना है. ये स्विगी कर दो, ये पिज्जा, ये बर्गर, ये जितने केचप, ये सबको घर से उठा के बाहर फेंकने का. ठीक है सर. तभी वो बच्चा है अपना, अगर जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा तो ये सारी बेईमानी है. एनईपी चाहे आप बड़े बड़े स्कूलों में, एयर कंडीशन स्कूलों में भेज दो, अगर उसको वहां पर क्या करते हैं, वो डाइट पे ध्यान देते हैं. उनको पता है कि न्यूट्रिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. So these are my suggestion to all of my students. सर अब जैसे आपको मोर देन आई थिंक 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है स्कूल एजुकेशन में. आप पूरे वर्ल्ड घूमे हैं स्कूल्स में, आपने एजुकेशन समिट्स करे हैं, कोरिया गए हैं, जापान गए हैं. तो सर आप कुछ चीजें बता सकते हैं जो कोरिया के एजुकेशन सिस्टम से हम क्या सीख सकते हैं? इंडियन सिस्टम क्या सीख सकता है, गवर्नमेंट क्या सीख सकती है जो कोरिया में हो रहा है और इंडिया में नहीं हो रहा है? देखिए, एक सिंपल थ्योरी है. It is due to the faulty education system. Right part of the human brain, by the time child enter in class 9th, right brain gaya, because it works in intuitive way. All great discoveries right brain से हुआ है. Okay. और हम फोकस किस पे दे रहे हैं? लेफ्ट पे. ये क्या है? लर्निंग, मेमोरी, ऑडिटरी, सुनने का, स्मेल, ये सब राइट पे है. ऑडिटरी स्किल, बोलना, ये सब इधर है. राइट जो है वो इट वर्क्स इन इंट्यूटिव वे. एप्पल बिफोर न्यूटन्स मिलियंस पीपुल हैड देखा होगा ना गिरते हुए, लेकिन व्हाई न्यूटन थॉट इन दैट डिफरेंट वे? बिकॉज ऑफ द इंट्यूटिव ब्रेन. इंट्यूटिव. दिस इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी, चांस. वो अचानक सोचा, आर्किमिडीज जा रहा था, जंप किया पूल में, अचानक संबंध थ्रो, तो उसको लगा रे कुछ फेंक रहा है, वो निकला पूल से भागते भागते, यूरेका यूरेका यूरेका, एंड इन दैट वे. तो ये कब होगा? बायोलॉजिकली प्रोफेसर जॉन मैन, सिंगापुर स्मार्ट प्रोसेसिंग इंटरनेशनल डायरेक्टर, ही रोट ए पेपर पब्लिश इन 2002.
उसमें उन्होंने कहा कि राइट ब्रेन का जुडिशियसली यूज करने का है। हमारे यहाँ हमारे जनरेशन में एक बड़ा सिंपल कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इट्स अ ओल्ड सेइंग बट इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। बाद में पता चला कि ये जो राइट ब्रेन है, इट वर्क्स ओनली व्हेन यू इन्वॉल्व योर किड्स इन को स्कॉलिस्टिक एरिया लाइक स्पोर्ट्स, लाइक म्यूजिक एंड आर्ट्स। अगर आप ये कराते हैं तो राइट ब्रेन 9th 10th आते आते खत्म नहीं हो जाएगा। तो सर आपका मतलब है कोरिया और बाकी कंट्रीज में वो लोग एजुकेशन सिस्टम्स को ये इस लेवल से डिफाइन करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग तो है ही, साथ में रोट लर्निंग वो बिल्कुल नहीं। हम क्या बना रहे हैं इंडिया में? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। हमने फिजिक्स भी पढ़ने हैं, केमिस्ट्री, मेरी इच्छा है भाई कि मुझे तो हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन साथ में केमिस्ट्री का भी इंटरेस्ट है। बट थैंक्स टू एनईपी हायर एजुकेशन, उन्होंने जो एक ब्रैकेट लगा था, जंजीर बंधा हुआ, वो ओपन कर दिया। तो सर कोरिया में और बाहर ये पहले से ही ये पहले से ही है कि डिपेंडिंग, अब हमारे समय में क्लास 6 में एडवांस मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हुआ करता था। आई हैड चूजन बायोलॉजी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। बाद में ये सिस्टम खत्म हो गए, सबको मैथ पढ़ाओ और साइंस पढ़ाओ, बायोलॉजी भी पढ़ाओ। तो डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड वी हैव टू सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अब ये कोई ब्रैकेट नहीं है कि भाई हमको इच्छा है अब बायोलॉजी के साथ हमें साइकोलॉजी पढ़ना है, पढ़िए। तो सर एक तो ये पॉइंट हो गया कि वहां पर पहले से वो राइट ब्रेन को डेवलप होने देते हैं, इंट्यूटिव ब्रेन पर काम करते हैं, यू कैन मिक्स सब्जेक्ट। इज देयर एनीथिंग एल्स कि वहां पर आपने देखा जो आपको लगा कि इंडिया में ये होना चाहिए या अभी तक नहीं हो रहा है? इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज ए चाइल्ड इन द प्राइमरी फाउंडेशनल स्टेज, ही इज डूइंग गुड इन आर्ट, अब वो आर्ट में चला गया, अब थ्रू आउट द लाइफ वो आर्ट की तरफ ही जाएगा। ये वहां पर होता है। अभी एक नया वर्ड आया है ना, आप लोगों ने सुना होगा हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी। यस। अब कई स्कूलों ने भी ऐड कर दिया है सुपर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी इसको। जैसे आवर स्कूल इज ऑल्सो सुपर स्पेशलिटी बिकॉज वी हैव डाटा साइंस, वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी गिटहब, अब 3D प्रिंटर्स के थ्रू बच्चे ये कर रहे हैं। तो ये सुपर स्पेशलिटी का कंसेप्ट है। अब जैसे आप देखिए हमारे मेडिकल साइंस में भी ए टीम ऑफ डॉक्टर्स टू ओपन, अब मिट्रल valve बदलना है तो एक मिट्रल valve स्पेशलिस्ट सबसे लास्ट में आएगा, पहले एनेस्थेसिया आएगा, वो बेहोश करेगा, दूसरा ओपन द रीब्स, कट करेगा। वो इतना एक्सपर्ट है रीब को काटने में, वो हजारों रीबें काट चुका है, बस इतना ही जानता है, वो टीम हट जाती है। थर्ड टीम आया, पेरिकार्डियम ओपन करता है, हार्ट को ओपन करता है, बस वही करता है। तब डॉक्टर तिरहन या डॉक्टर वेणुगोपाल आएंगे और मिट्रल valve बदल के निकल जाएंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें सिखाई। आई एम श्योर जो लोग देखेंगे ये कुछ ना कुछ आपसे सीख कर जाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग आवर फर्स्ट गेस्ट। थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद माय होप सर आपका हमारे लिए कुछ फीडबैक है सर, स्कूल कास्ट जो हमारा ये नया पॉडकास्ट है बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके द्वारा हम सारे प्रिंसिपल जितने एजुकेशनिस्ट हैं, नॉट ओनली प्रिंसिपल्स, ऑल एजुकेशनिस्ट कैन लर्न ए लॉट। एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे जिससे कि अच्छी बातें मास तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल। अब वट एवर आई एम डूइंग हियर इन जागरण, इट्स कन्फाइंड टू, दो आई बिलोंग टू द मीडिया हाउस, बट वी डोंट हैव टाइम टू जस्ट शेयर द थिंग्स प्रिपेयर्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि पीएम ग्रुप ने एक अच्छा लॉन्च किया है। ये बहुत बहुत अच्छा, और मेरी अनेक अनेक बधाई आपके लिए। थैंक यू।